हम वर्स करेंगे 19, कैंटो 1 चैप्टर 9 वर्स नंबर 18। और तो जैसे मैंने पहले कहा कि विष्णुप्रेश्वर प्रभु के ब्रदर ठीक नहीं है, तो वो आज क्लास उन्होंने देनी थी, तो वो गए मैं सिडनी। तो ये क्लास हम उनको डेडिकेट करते हैं, उनकी प्रे, उनके ब्रदर की प्रे के लिए, उनके ब्रदर के लिए प्रे करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवतु नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। एषा वै भगवान् साक्षात् अद्यो नारायणा पुमान् मोहायान् मायाया लोकम् बुद्धाश्चरति कृष्णेषु। और भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्स है। वो बोल रहे हैं कि दिस श्री कृष्णा इज नो अदर देन द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। He is the first Narayan, the supreme enjoyer, but he is moving amongst us, the descendants of King Vrishni, just like one of us. And he is bewildering us with his self-created energy. Amazing, ना? ऐसे बोल रहे हैं कि दिस श्री कृष्णा ये जो हमारे साथ घूम रहा है, ये इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज इनकंसीवेबल, ही इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। So this is what Bhishma Pitama is saying. So purport by his divine grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? कैन आई रीड प्रभु जी? ये माता जी आप। थैंक यू। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सो जस्ट इन केस इफ इट गेट्स डिस्कनेक्टेड यू कैन पिक अप मी प्रभु, इज दैट ओके? Okay. Hare Krishna. The Vedic system of acquiring knowledge is the deductive process. The Vedic knowledge is received perfectly by disciplic succession from authorities. Such knowledge is never dogmatic, as ill conceived by less intelligent persons. The mother is the authority to verify the identity of the father. She is the authority for such a confidential knowledge. Therefore, authority is not dogmatic. In the Bhagavad Gita, this truth is confirmed in the second verse of fourth chapter, and the perfect system of learning is to receive it from the authority. The very same system is accepted universally as truth, but only the false arguers speak against it. For example, modern spacecraft fly in the air, and when scientists say that they travel to the other side of the moon, men believe these stories blindly because they have accepted the modern scientists as the authority. The authorities speak, and the people in general believe them. But in the case of Vedic truth, they have been taught not to believe. Even if they accept them, they give a different interpretation. Each, each and every man wants a direct perception of Vedic knowledge, but foolishly they deny it. This means that the misguided man can believe one authority, the scientist, but rejects the authority of the Vedas. The result is that people have degenerated. Here is an authority speaking about Sri Krishna as the original personality of Godhead and first Narayana. Even such an impersonalist as Acharya Sankara has said in the beginning of his commentation on Bhagavad Gita that Narayana, the supreme personality of Godhead, is beyond the material creation. The universe is one of the material creation, but the Narayana is transcendental to such material paraphernalia.
Bhishma Dev. Bhishma Dev is one of the 12 Mahajans who know the principle of transcendental knowledge. His confirmation of Lord Sri Krishna is Krishna's being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonalist Sankara. All other acharyas have also confirmed this statement, and thus there is no chance of not accepting Lord Sri Krishna as the original personality of Godhead. Bhishmadev says that he is the first Narayana. This is also confirmed by Brahmaji in the Bhagavatam. Krishna is the first Narayana. In the spiritual world, Vaikuntha, there are unlimited number of Narayanas who are all the same personality of Godhead and are considered to be the planetary expansion of the original personality of Godhead, Sri Krishna. The first form of Lord Sri Krishna first expands himself as the form of Baldeva, and the Baldeva expands in so many other forms such as Shankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Vasudev, Narayana, Purusha, Ram, and Narsimha. All these expansions are one and the same Vishnu Tattva, and Sri Krishna is the original source of the planetary expansions. He is therefore the direct personality of Godhead. He is the creator of the material world, and he is the predominating deity known as Narayana in all the Vaikuntha planets. Therefore, his movements amongst human beings are another sort of bewilderment. The Lord therefore says in the Bhagavad Gita that foolish person consider him to be one of the human beings without knowing the intricacies of his movements. The bewilderment regarding Sri Krishna is due to the action of his twofold internal and external energies upon the third one, called the marginal energy. The living entities are expansions of his marginal energy, and thus they are sometimes bewildered by the internal energy and sometimes by the external energy. By internal energetic bewilderment, Sri Krishna expands himself into unlimited numbers of Narayana and exchanges or accepts transcendental loving service from the loving entities in the transcendental world. And by his external energetic expansions, he incarnates himself in the material world amongst the men, animals, or demigods to re-establish his forgotten relationship with the living entities in the different species of life. Great authorities like Bhishma, however, escapes his bewilderment by the mercy of the Lord. Hare Krishna. Yeah, thank you, Mataji. It's such a big purport and amazing purport, right? By Srila Prabhupada. What he's saying is now, अब हमें क्वेश्चन आ सकता है कि ये एकदम से भीष्म पितामह ये क्या बोलने लगे। अभी तक तो वो सफरिंग और वो सब बातें कर रहे थे, राइट? बट थीम अभी भी वही चल रहा है, बट अभी वो थोड़ा सा वो श्री कृष्णा क्योंकि आए हैं तो उनकी बात करने लगे हैं। पर वो बोल क्या रहे हैं कि लुक एट कृष्णा, ही इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इज व्हाट ही इज सेइंग। एकदम से अभी तक वो थीम कुछ एकदम से चेंज कर दिया उन्होंने। क्यों बोल रहे हैं वो ये? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जो तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो वो कृष्णा की वजह से पहुंचे हो। और अभी प्रभुपाद उसमें परपोर्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमारी, अब बोलोगे कि यार ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं ऐसे, हम क्यों माने कृष्णा को? ठीक है, तो वो प्रभुपाद उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो नॉलेज है हमारी परंपरा से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो भीष्म पितामह ने बोला इट्स दिस नॉलेज इज अ डिडक्टिव प्रोसेस, डिसिप्लिक सक्सेशन में आई है। तो भीष्म पितामह कौन कौन है? वन ऑफ द महाजना, धर्मम तो साक्षात भजतम प्रणीता। तो जो the true religious principles are given by God himself, and they gave it to whom? These 12 महाजन्स। और ये 12 महाजन आगे बता रहे हैं। सो भीष्म पितामह जो बोल रहे हैं, he is telling with the he has that authority, and who gave him that authority? Krishna himself gave that. तो सेम वे वो बोल रहे हैं कि चैप्टर 4 भगवत गीता में भी बोला गया है कि एवं परंपरा प्राप्त है। ये जो नॉलेज रिसीव करी है ये हमने, ये परंपरा में आती है, राइट?
वो बोल रहे हैं कि अगर साइंटिस्ट कुछ भी बोल देते हैं कि हम वहां पर चले गए, मून पे चले गए, ये बना दिया वो बना दिया, तो उनको तो हम बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइंटिस्ट छोड़ो, ये हम ये जो बुक्स पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हम इसको इसको तो कभी नहीं चैलेंज करते कि ए के बाद बी क्यों आता है, ए के बाद डी क्यों नहीं आता। एक ए बी सी डी तो याद कर लेते हैं हम ऐसे ही। उस पर आज तक नहीं क्वेश्चन किया किसी ने कि नहीं भाई मैं तो ए के बाद डी लिखूंगा, फिर मैं सी लिखूंगा, फिर मैं बी लिखूंगा। कोई नहीं बोलता ऐसे, राइट। तो वेदों को क्यों हम, वैदिक नॉलेज को क्यों हम डिनाई करते हैं? दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, सो वी शुड नॉट डू दैट। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि हमें वो फेथ पूरा पूरा भागवतम में और उनके स्पीकर्स में वो फेथ होना चाहिए हमें, राइट। और अब वो बोल क्या रहे हैं, फिर वो क्रिएशन के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्रिएशन कैसे करी है। ये हम सबको पता है ना कि क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कृष्णा। कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन। वहां से कृष्णा एक्सपैंड हुए हिमसेल्फ इनटू बलराम। बल बलराम आगे एक्सपैंड हुए प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, सैप सैप है ना लैंग्वेज, तो वी सैप, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो ये चार निकलते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट सेट, फिर इस महासंकर्षण होता है, ये इस संकर्षण से नेक्स्ट सेट ऑफ ये निकलते हैं दोबारा से, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। फिर उनमें से आगे निकलते हैं महाविष्णु। संकर्षण में से महाविष्णु निकलते हैं, महाविष्णु से फिर आगे गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु। ये सारे क्या है, विष्णु तत्व हैं। ऑल दीज एक्सपेंशन, ये हम सबको क्लियर है ना, ये डायग्राम कई बार मैंने दिखाया हुआ है, दिखो क्या दोबारा, याद है किसी को? नहीं नहीं प्रभु जी, तो क्या, आई थिंक हमने फर्स्ट उसमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन में भी किया हुआ था। गुड गुड, ऑलराइट, सो वी नीड नॉट गो इनटू दैट डिटेल। गुड। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, बट भगवत गीता में इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सब नॉलेज, ये तो हमें नॉलेज है, बट इससे पहले मुझे तो इस्कॉन में से आने से पहले ये नॉलेज नहीं थी। हम तो ये बोलते थे कि जी कृष्णा तो क्या है, विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है कृष्णा, isn't it? तो दिस इज बिल्डरिंग। तो देयरफॉर लॉर्ड सेज इन भगवत गीता के जो फुलिश पर्सन्स दे कंसिडर हिम ह्यूमंस, मानुषिम तनुमाश्रितम, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, अवजानन्ति वो, दे डिराइड मी बाय कॉलिंग मी ह्यूमन, मानुषिम तनुमाश्रितम। वो क्या है, वो क्या है, दे आर फुलिश पीपल, जिनको ये लगता है कि ये ह्यूमन है, राइट। और फाइनली वो क्या बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्णा की ये जो विल्डरमेंट है, व्हाई इट इज हैपनिंग, हम कौन सी वो एनर्जीज की बात कर रहे हैं, बेसिकली इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी। हम कौन सी एनर्जी में आते हैं, मार्जिनल एनर्जी। हमने कई बार डिस्कस किया, इट्स लाइक अ पेंडुलम। कभी हम कृष्णा की तरफ जाते हैं, कभी हम माया की तरफ जाते हैं। सो कभी इंटरनल पोटेंसी के अंदर, कभी एक्सटर्नल पोटेंसी के अंदर। तो हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है, दैट इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। So this is all he is talking about. Now, coming to the theme which we were discussing earlier, right? So we'll continue from that theme. तो हमारा थीम क्या चल रहा था कि युधिष्ठिर महाराज सफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ इतना उन्होंने जो मैसेकेयर देखा। उसके बाद कोई उनको मना नहीं पा रहा है, भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह खुद से सफर कर रहे हैं, isn't it? जब भीष्म पितामह खुद से सफर कर रहे हैं, तो वो, हाँ, तो जो भीष्म पितामह खुद से सफर कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज केयरिंग फॉर अदर्स। वो बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर और पांडवों ने कितना वो अत्याचार सहा है, राइट। फिर हमने देखा था कि सफरिंग क्यों होती है। नाउ द क्वेश्चन, लास्ट टाइम तक हमने ये देखा था कि सफरिंग क्यों होती है, इजंट इट? प्योर डिवोटीज को होती है, जो डिवोटीज नहीं है उनको होती है, और मिक्स्ड मिश्र भक्त जो हमारे जैसे हैं उनको भी होती है। हमने रीजन पता चल गया था। रीजन पता चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर रीजन नहीं पता होगा ना कि मैं सफर क्यों कर रहा हूँ इस दुनिया में, तो बहुत दर्द होगा। जब एक बार रीजन पता चल जाता है, ओह ओके ठीक है, इस वजह से है, देन इट इज फाइन। फॉर एग्जाम्पल, एक दो पेशेंट हैं, वो अलग अलग बेड पे हैं।
लेटे हुए हैं और हॉस्पिटल में, और दोनों करा रहे हैं, रो रहे हैं, पेन्स हो रही है उनको, सफरिंग हो रही है। पर एक पेशेंट का डायग्नोज हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो उसको पता है कि ये जो पेन है ये शॉर्ट लिव्ड है, या ये पेन जो है वो इस वजह से हो रही है और डायग्नोज हो गई है, यू विल बी बेटर सून। तो उसकी सफरिंग तो फिर भी है, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसका वो पीस ऑफ माइंड रहता है कि यार ठीक है, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और दूसरा पेशेंट है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, पर उसको पता नहीं है, उसका डायग्नोज ही नहीं हो रहा है, उसको पता नहीं है क्या किस वजह से हो रही है, उसका इलाज भी नहीं शुरू हो रहा है और उसको पता ही नहीं है। तो वो चीज है नॉन डिवोटीज के साथ। नॉन डिवोटीज को पता ही नहीं है कि वो इस दुनिया में क्या करने आए हैं। हम भी उन्हीं उन्हीं में से थे 5 साल पहले। हमें कुछ पता था क्या करना है, एम ऑफ लाइफ क्या था? जॉब, घर, एक घर, दो घर, लग्जरी कार, एसयूवी, स्पोर्ट्स कार, ये सब इन सब में था। और फॉरेन ट्रिप्स, यहाँ पे न्यूजीलैंड घूमेंगे, स्विस घूमेंगे, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे। दिस वॉज द ओनली एम। वर्ल्ड टूर मारना है, बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूमना है, अच्छे अच्छे घर लेने हैं, बस खत्म। तो बाद में जाके फिर पता चला कि भाई पर्पस क्या है लाइफ का। और जब सफरिंग आती है तब तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि जो नॉन डिवोटी उसको तो पता ही नहीं चलता क्या होता है। डेथ आती है तो बिल्कुल ही भूल जाओ, उसको पता ही नहीं है। उसी पे आज और डिस्कस करेंगे, राइट। तो भीष्म पितामह, ही वॉज सफरिंग, राइट, बट ही वॉज नॉट सफरिंग, हिज बॉडी वॉज सफरिंग। हिज बॉडी वॉज सफरिंग, बट अगर वो सफर कर रहे होते भीष्म पितामह, खुद सोचो, अगर भीष्म पितामह सफर कर रहे होते तो क्या वो इतना लेंथी भाषण देते? कितने, फॉर डेज पांडवास केम, सारा दिन वहां बैठते थे, कथा सुनते थे, शाम को चले जाते थे, फिर अगले दिन आते थे, फिर सुनते थे। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, दिस इज द बिगेस्ट पर्व, शांति पर्व, दिस इज द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ महाभारत। तो अगर कोई बंदा सफर कर रहा होता वो तो जल्दी से, और वो इच्छा मृत्यु थी उनके पास। यहाँ पे लोग थोड़ा सा सफर करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, यूथनेशिया, राइट। सो दे गो फॉर दैट, so that I don't suffer. It's a very controversial thing which is happening these days. So, but he can go anytime, which means he was not actually suffering, isn't it? Whereas now compare with us, हम अच्छी comfortable situation में भी हैं, still we are suffering. This is the difference. Because he has taken Krishna's shelter, he is not suffering, although suffering दिखता है bodily, but हमारी bodily comforts पूरी हैं, still we are suffering, isn't it? मैंने कई लोग देखे हैं जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है, राइट। हाँ, फॉर 58 डेज, करेक्ट, मैं डेज भूल गया था। 58 डेज, 58 डेज तक वो आके, आई थिंक 58, हाँ 58 डेज तो रहे हैं, बट वो कुछ आई थिंक महाभारत के खत्म होने के थोड़े दिन बाद तक फिर वो आना शुरू हुए, राइट। तो मे बी 54 या 55 डेज तक वो आके सुनते रहे हैं उनसे वो ज्ञान, एंड देन ही लेफ्ट। सो थैंक यू माता जी। सो एंड प्रभु जी, वन मोर फन फैक्ट इज उत्तरायण के दिन ही उन्होंने अपना देह त्याग त्याग किया था। ही वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण एज वेल, कि जब वो उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो होते हैं ना, कि दक्षिणायन होते हैं जब ये सब देवी देवता सो रहे होते हैं, और उत्तरायण होता है जब उत्तरायण, अभी जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, दैट्स द सेम डे राइट, उत्तरायण? आई एम नॉट नो, श्योर। उसको बलि प्रतिपदा बोलते हैं, सॉरी सॉरी कंफ्यूजन। प्रतिपदा बोलते हैं उसको, नॉट उत्तरायण। अभी जुलाई में तो वो स्टार्ट हो जाएगा ना। लेकिन मतलब जी नहीं, जो अभी न्यू ईयर। उत्तरायण यानी वो जो काइट फेस्टिवल वाला है ना, वही होता है, क्योंकि उससे पहले हाँ, मुहूर्त अच्छे नहीं होते हो हमारे वहाँ पे, एक महीने तक कुछ। कमुरता। हाँ, का मुहूर्त हाँ बोलते हैं। तो हाँ यानी हाँ। वो उसको उत्तरायण यानी उसको उसी को ही वो बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, तो उसको भी हम उसको शुभ नहीं मानते। उस टाइम में हम शादी और वो सब कुछ नहीं, ऐसा कोई मेन त्योहार, वो कुछ त्योहार कह रहा हूँ, कुछ ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करते हैं हम लोग भी। तो बट वो आई थिंक स्टार्ट होता है जब देवता जागते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स व्हेन इट स्टार्ट्स, एनी हाउ। सो नाउ द पॉइंट इज के भीष्म पितामह नहीं सफर कर रहे हैं, ऑल दो इज बॉडी सफरिंग, बट वी आर कंफर्टेबल, बट वी आर सफरिंग। सो how can we do it? Is there something which we can do which help me avoiding or alleviating the suffering which I am getting?
विच आई गो थ्रू। तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आज कि हम कैसे अपनी सफरिंग को प्रैक्टिकली थोड़ा कम कर सकें, या उसको थोड़ी सी रिड्यूस कर सकें उसको, राइट। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अगर हमें ग्रेटिट्यूड होगा तो सफरिंग कम होगी। अब आप पूछोगे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे टूवर्ड्स कृष्णा, कि कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी, थैंक यू फॉर orchestrating these things in my life, thank you for doing this, thank you for doing this, then what happens is कि हमारा जो कृष्णा के साथ इमोशनल कनेक्ट है ना, वो होगा। अभी तक हमारा कृष्णा के साथ जनरली अगर मैं अपनी बात करूं तो 70 to 80% इंटेलेक्चुअल कनेक्टिंग है। ओके, कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड, ये भी भीष्म पितामह जो बोल रहे हैं, राइट, इजंट इट? तभी उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। his this is वो संकर्षण नारायण इस फॉर्म क्षीरोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। दीज आर ऑल द डिटेल्स विच वी हैव, राइट। बट विल इट हेल्प? हेल्प, इट हेल्प्स, बट क्या ये ज्यादा हेल्प करेगा कि जो इमोशनल कनेक्ट है कृष्णा के साथ वो ज्यादा हेल्प करेगा? एक बड़ी फेमस सेइंग है लाइफ और डेथ को लेके, श्रील प्रभुपाद सर उसको कोट करते हैं। किसी को पता है लाइफ और डेथ को लेके एक एक स्टेटमेंट है? नहीं, लाइफ इज अ प्रेपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। काफी बार ये सुनी होगी ना आपने, कि लाइफ जो है वो हम उसमें प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड देन डेथ इज द फाइनल एग्जामिनेशन, जब हमारा एग्जामिनेशन होता है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। एंड जब हम मर रहे होते हैं, इट इज नॉट easy or it is not even feasible sometimes to remember Krishna, right? और स्पेशली जब मरने के टाइम, और ये तो नेचुरल डेथ है, कई बार अननेचुरल डेथ्स भी हो जाती है, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो कृष्णा का बायोडेटा पता होना, कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। तो जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो रेसिप्रोकेशन कृष्णा के साथ स्टार्ट हो जाती है, सो दैट रिमेम्बरेंस शुड नॉट बी इंटेलेक्चुअल बट इमोशनल। एम आई मेकिंग सेंस? नहीं, तो जब भी हम देखते हैं जब किसी की डेथ होती है तो लोग बोलते हैं ना श्रद्धांजलि, इसको बोलते हैं श्रद्धांजलि, तो वो श्रद्धांजलि देते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में, उनके उनका बायोडेटा खोल के बोलते हैं, हाँ ही वॉज अ इंजीनियर, वो इन्फोसिस में काम करता था, और ये नो, दे डोंट दे डोंट टॉक लाइक दैट, राइट। कि वो क्या बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा, कोई कोई अपना किस्सा सुनाते हैं कि वो मेरा फ्रेंड था, हम ऐसे साथ घूमते थे, कोई मेमोरी शेयर करते हैं। वो सारी इमोशनल चीजें शेयर करते हैं उनके साथ, इजंट इट? रादर देन कि उनका वो, उनके वो मटेरियल एसेट्स, कि हाँ इसकी 4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, टेल्स्ट्रा में काम करता था, और ये सब था। नो, तो इमोशनली यू कनेक्ट। सो कृष्णा के साथ भी हमें इमोशनली कनेक्ट होना है, ना कि इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअली इज फाइन, वी नीड टू नो अबाउट कृष्णा, वी नीड टू नो दैट प्लेस, दैट इज फाइन, दैट इज, बट दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग। इन द एंड हमारा वो इंटेलेक्चुअल से इमोशनल जर्नी होनी चाहिए, और उसमें ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत हेल्प करता है। सेइंग थैंक यू टू कृष्णा, मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक बोला था कि हमें ये लिखना चाहिए, जर्नल लिखना चाहिए। मैं बीच बीच में कभी कभी लिखता हूँ कि हाउ आई मेट कृष्णा टुडे। सो कृष्णा कम्स इन योर लाइफ इन वन फॉर्म और द अदर, राइट। सो अगर हम वो एक्सपीरियंस करेंगे डेली कृष्णा के साथ, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो एक रिमेम्बरेंस रहेगी हमारे हमारे जीवन में। मैंने पहले बताया था ना कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था कि जितने भी सोल्जर्स मर रहे थे, 90% ऑफ द सोल्जर्स जो मर रहे थे, उनकी लास्ट स्टेटमेंट, उनके लास्ट थॉट्स वर मॉम। उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे? मॉम, मदर, मम्मी। वाई? बिकॉज वो मम्मी के साथ, मदर के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट था।
और लास्ट के टाइम पे जब डेथ, यू आर फेसिंग डेथ, तो उस टाइम पे तुम्हारे लव्ड वंस तुम्हारे सामने आते हैं सबसे पहले। एक वो मूवी थी ना, बॉर्डर थी या बॉर्डर के बाद एक आई थी, एलओसी आई थी, तो उसमें वो दिखाते थे, राइट, कि गोली लग गई है उसके और हीरो के, और वो अपनी वो उसकी फोटो निकालता है। तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार वॉर चल रही है, उसके बीच में ये क्या दिखा रहे हैं। बट नाउ व्हेन आई लुक्ड एट द स्टैट्स, इट्स रियल, आई मीन द वन whom you love the most, उनका चेहरा आपके सामने अपने आप आ जाता है when you are dying. I mean, मैं तो नहीं मरा हूँ, but the stats are saying, I mean, I can't tell exactly what will happen when you die, but this is what the stats are saying, right? So this is the purpose of भक्ति योगा। तो हम भक्ति योगा कर रहे हैं ताकि हम उस स्टेज पर आ जाएं जहां पर हम कृष्णा को स्पॉन्टेनियसली, इमोशनली हम उनको देख सकें। जैसे हम अपनी मदर को या जो भी हमारा लव्ड वन है उसको देखते हैं, उसका थॉट आता है हमें immediately, right? So this is what uh, you will get by doing the bhakti yoga. So start practicing gratitude, and then Krishna will shift from intellectual to emotional memory. और now coming back to that suffering thing, अभी मैंने क्या बोला था? Life is a preparation and death is the final examination. Now listen carefully. Now what is happening is, अब कृष्णा क्या कर रहे हैं? फाइनल एग्जाम से पहले वो यूनिट टेस्ट भी तो देंगे ना, मिड टर्म एग्जाम, हमें टेस्ट करने के लिए और हमें हेल्प करने के लिए। तो दैट इज द सफरिंग विच कृष्ण इज गिविंग। यार उस टाइम पे तो अपना फाइनल एग्जाम होगा, तो कैसे याद रखोगे? बीच में आते हैं ना वो मिड टर्म एग्जाम, सितंबर में, हमारे इंडिया में तो सितंबर में एग्जाम्स होते थे, फिर दिसंबर में होते थे, फिर मार्च में फाइनल एग्जाम्स होते थे। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज डूइंग बाय गिविंग अस सफरिंग, कि वो छोटी सफरिंग देके ही इज helping us in practicing in remembering his name, in remembering him, right? तो ताकि तुम कृष्णा को जब फाइनल एग्जाम हो तुम उनको इजीली रिमेम्बर कर सको। तो क्या हम, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारे लाइफ में सफरिंग आती हैं, तो क्या हम कृष्णा को याद करते हैं, कि क्या हम अपने पड़ोसी को या अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को, इन सबको याद करते हैं? दैट्स द पॉइंट। एक बार गुरुजन प्रभु, मुझे अभी तक याद है, लास्ट ईयर, मतलब काफी पहले आए थे, तो उन्होंने बोला था, कहते सपोज, कहते तुम ट्रेन ट्रैक पे फंसे हुए हो और तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है, और ट्रेन आ रही है, तब क्या करोगे तुम? अपने फ्रेंड, फोन तुम्हारे पास है नहीं, अपने फ्रेंड को फोन करोगे, किसको करोगे? उस टाइम पे भगवान ही है, भगवान को याद करो और दैट्स इट, राइट? सो जब भी ट्रबल आती है तो वी शुड, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ट्रबल आई, ठीक है, मटेरियल सोल्यूशन हम ऑब्वियसली विल डू, वो तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड ही है हमारे अंदर। बट प्रैक्टिस हमें किस चीज़ की करनी है? कि कृष्णा को रिमेम्बर करें, कृष्णा को रिमेम्बर करें, ताकि जब फाइनल टेस्ट आए, जो मेन सफरिंग आने वाली है, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें, right? तो तभी हमने देखा ना जो, हाँ जी हाँ जी, तुम बोलो, कुछ कह रहे थे आप? वो ये कल जो रिट्रीट थी ना महाराज की, हम्म। तो महाराज ने एक फनी चीज बताई थी कि प्रभु जी बोले कि वो दिल्ली में लेक्चर दे रहे थे काफी साल पहले। तो सब्जेक्ट था कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो कि पूरा लेक्चर उस पे ही चला। फिर प्रभु जी बोले कि मैंने सबके चेहरे देखे थे तो एक जैसे ही लग रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप सब एक जैसे चेहरे हो, तो आप में से पंजाबी कितने हैं? तो महाराज बोलते हैं कि आधे से ऊपर से क्लास ने हाथ ऊंचा कर दिया। तो महाराज बोलते हैं कि पूरा क्लास चला कि आई एम नॉट दिस बॉडी, फिर भी वो फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ मैं पंजाबी हूँ। हाँ, करेक्ट। तो वही है ना, बॉडीली अफेक्शन जाता नहीं है। अब हम वही सोचते हैं, हमें पता है फिर भी हम वही सोचते हैं। मटेरियल चीजों की तरफ, वही सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान जाता है, बट देर इज नो मटेरियल सॉल्यूशन
to material problems. There is only spiritual solution to material problems. There could be a temporary one, but not a permanent solution. Permanent solution is always a spiritual solution, right? तो सीनियर डिवोटीज, तभी मैं कहता हूँ कि सीनियर डिवोटीज और एवरी डे दे आर प्रैक्टिसिंग, इजंट इट? वो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की, तभी कृष्णा को रिमेम्बर करने की, तभी अगर उनकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, जब टफ सिचुएशन आती है, दे आर रिलेटिवली इजीली ओवरकम कर लेते हैं उसको, राइट? अब वो मिस्टर नायर की स्टोरी हम सबको पता है, राइट? कि वो जुहू में कितनी मुश्किलों से 3 साल लग गए थे, वो उनकी आपस में वो ट्रबल होते हुए, उनके आपस में वो जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए लैंड को लेके, जुहू टेम्पल के लिए। तो फाइनली आफ्टर 3 इयर्स वो ऐसे ट्रीटी उन्होंने साइन, मतलब पीस जो भी था एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, लीज ट्रांसफर का जो भी वट एवर लैंड का। तो उस टाइम पे उसके बाद प्रभुपाद ने लेक्चर दिया कि अ डिवोटी नेवर हैज अ प्रॉब्लम। डिसाइपल बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, 3 साल हमने जो हालत हुई है हमारी खराब, और ये बोल रहे हैं कि डिवोटी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो what Prabhupada was telling, was trying to say here is that it was a good fight. It was a good fight, and he was saying it was a good fight. ऐसा कौन कौन बोल सकता है जिसका, जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी हो, ठीक है ना? होता था ना कई बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन किसी किसी एग्जाम में गलती से कई बार हो जाती थी, और उसके बाद पेपर आता था टफ। तो टफ पेपर आता था, अच्छी तैयारी हो रखी है तो खुश होते थे हम कि वाह आई एम टेस्टेड, राइट? तो वो चीज है। तो एक जो डिवोटी है, वो ऐसी सफरिंग्स में और ऐसे टेस्ट जब लाइफ में आते हैं, सो ही इजीली ओवरकम्स दैट, एंड ही इज हैप्पी कि हाँ यार देखो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आई वाज एबल टू डू दैट, ओवरकम दैट वेरी इजीली। वेयर एज नालायक बच्चा जो होता था, उसको थोड़ा सा भी टफ आ जाता था तो बाहर आके हम बोलते थे अरे यार पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। Isn't it? तो दिस इज अ डिफरेंस। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी सफरिंग के बाद ही हम बोल देते हैं, कंप्लेंट करने लग जाते हैं। वेयर एज जो प्योर डिवोटीज हैं, वो बड़े बड़े चैलेंजेस, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस के बाद भी वो दे आर हैप्पी, दे आर ब्लिसफुल, लाइक भीष्म पितामह, लाइक प्रभुपाद, isn't it? तो टफ एग्जाम क्या करता है, इट गिव्स अ जस्टिस फॉर आवर प्रिपरेशन, राइट? जैसे क्रिकेट में देखो ना, विराट कोहली क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या बोलते हैं, बिग मैच प्लेयर्स, बिग मैच प्लेयर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो बाकी 28 बॉलों में 8 बॉलों में 28 रन बना देता है विराट कोहली, टाइट सिचुएशन से मैच को निकाल देता है। वाई? वेयर एज जो दूसरा नॉर्मल प्लेयर होगा वो क्रम्बल कर जाएगा। क्यों? प्रेपरेशन, उसकी प्रेपरेशन हुई है बहुत अच्छी। तो हमारी प्रेपरेशन जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा हमारा एंड में एग्जाम होगा। तो स्ट्रेस जो है, इट हेल्प्स अस इन रिमेम्बरिंग कृष्णा मोर। जितनी लाइफ हंकी डोरी रहेगी ना, उतनी कृष्णा को याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। राइट? सो सफरिंग्स क्या है, मिड टर्म टेस्ट है एंड अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू ऐड रेसिप्रोकल मेमोरीज। तो सफरिंग इज नॉट अ एज सच अ बैड थिंग इन द लाइफ ऑफ ए डिवोटी, राइट? ताकि जब डेथ आती है डिवोटी की, तो हाउ इट फील्स, जब डेथ आती है, कृष्णा एक्ट्स लाइक अ कैट और वी आर लाइक अ किटन। तो किटन को जब कैट मुंह में उठाती है तो दर्द नहीं होता। वेयर जब नॉन डिवोटी के लिए, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके लिए वो ही इज लाइक अ रैट इन कैट्स माउथ। मैंने काफी बार ये एनालॉजी देखी हुई है, राइट? सो द पॉइंट हियर इज दैट वी डेवलप emotional memory by practicing gratitude, right? So that's one thing. Now one way to, what theme क्या चल रहा है हमारा? How to overcome suffering, right? Practical ways to, not to overcome, we cannot overcome, but to alleviate, to reduce the suffering. सेकंड तरीका क्या है? पहला तो हमने देखा ग्रेटिट्यूड। सेकंड तरीका क्या है? बाय सरेंडरिंग टू द लॉज ऑफ कृष्णा। अब कृष्णा के क्या लॉज हैं? वेरियस आश्रम, वर्णाश्रम धर्म। तो अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ,
तो मैं ब्रह्मचर्य का अपना वो लॉज निभाऊंगा, लॉज को फॉलो करूंगा। अगर मैं अगर मैं गृहस्था हूँ और गृहस्था होके मैं आचरण करूंगा ब्रह्मचारियों जैसा, तो क्या है, आई एम एक्टिंग अगेंस्ट द लॉज। तो सफरिंग इज बाउंड टू हैपन, इजंट इट? उस अगर मैं गृहस्था हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, मेरे को तो कृष्णा कृष्णा चाहिए और मैं जा रहा हूँ टेम्पल में, मैं सारा दिन टेम्पल में रह रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा हूँ, सो सफरिंग्स विल कम लाइक एनी अदर, राइट? कोई भी लॉ ब्रेक करोगे, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में राइट हैंड साइड पे गाड़ी चलाऊंगा, लॉ ब्रेक करूंगा तो सफरिंग होगी, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। दैट्स कॉमन सेंस। तो वी ट्राई टू नॉट टू ब्रेक द लॉज। जो लॉज हैं, अगर हम उन लॉज को फॉलो करते जाएंगे तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ us getting the sufferings, right? Third point, chanting. Chanting is the attentive chanting. अगर हम करेंगे तो sufferings will reduce। जो भी हमारे पेन पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे दुख हैं, वो अच्छी चैंटिंग से चले जाते हैं। चैंटिंग और प्रेइंग, राइट? गो इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, ओपन योर हार्ट आउट, एंड कृष्णा विल टेक दैट सफरिंग। You will feel very light after sharing everything with Krishna, right? Or after having a good session of attentive morning chanting, right? Next one is preaching. Preaching से क्या होगा? जब हम भक्ति वृक्षा खोलते हैं, immediately we are exposed to 100 people, 80 people। अब क्या होता है कि जो हमें लगता है कि हम तो सफर कर रहे हैं, हम बहुत सफर कर रहे हैं, देन वी सी, देन पीपल, अदर पीपल, दे शेयर देयर सफरिंग्स। तो तब हमें जाके पता चलता है कि यार मेरा दुख कितना कम है। एक बॉलीवुड का गाना है ना, कौन सा है, मेरा दुख कितना कम है, ऐसा है नहीं कोई, कुछ सॉन्ग है ना ऐसा चल, आई डोंट नो, शायद मैं सुना होगा, आई डोंट नो, एग्जैक्ट मुझे लाइन याद नहीं आ रही है, बट हाँ। तो जब तुम दूसरे का दुख सुनते हो ना, तब अपना दुख तुम्हें लगता है कि यार वो अपनी तो क्या बोलते हैं उसको, थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ये जी, हम हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारी। भाई जाके देखो लोगों के क्या क्या हो रखा है, लोगों की लाइफ में, लोगों को टर्मिनल डिजीजेस हो रखी हैं, लोगों के डिवोर्सेस हो रखे हैं। सो हमें अपनी छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, बट when we start giving Krishna to others, right, then we see their, उनकी प्रॉब्लम्स देख के हमें अपनी प्रॉब्लम छोटी लगती है। एंड व्हेन वी प्रीच, वी स्टडी शास्त्रास एज वेल, राइट? जैसे हम ये शास्त्रा पढ़ रहे हैं, तो शास्त्रास पढ़ने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो अच्छी चीजों की तरफ जाता है। जब हमारा माइंड शास्त्र पढ़ रहा है, तो हम अपना कचरा नहीं ले रहे हैं अंदर। तो हम क्या चीज कर रहे हैं, उससे भी डिपेंड करता है कि हमारी सफरिंग कितनी हो। जब हम माइंड को अच्छी अच्छी चीजें सुनने को दे रहे हैं, शास्त्र सुनने को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% सफरिंग कम होगी। देर इज नो डाउट अबाउट इट। क्यों? आपका कौन सी थी वो सफरिंग, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक? सफरिंग कॉज बाय योर ओन माइंड, दैट इज वन ऑफ द मिजरीज, इजंट इट? तो वो जो सफरिंग आपका माइंड आपको दे रहा है, वो देना बंद कर देगा। क्यों? माइंड के ऊपर जो आपके गंदे नेगेटिव इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर क्या है, अच्छी लेयर्स, अच्छी मेमोरीज उसके ऊपर आ जाती हैं। तो वो जो बैड मेमोरीज हैं या जो ट्रबलसम इंप्रेशंस हैं माइंड पे, वो कहीं डीप डाउन चले जाते हैं। दैट रिड्यूसेस योर सफरिंग्स, राइट? और लास्ट वन, डिवोटी एसोसिएशन। अब डिवोटी एसोसिएशन से क्या होता है, इट्स अगेन अ एनेस्थीसिया। यू शेयर योर फीलिंग्स। जब आप फीलिंग अपनी शेयर करते हो किसी और के साथ, किसी एक डिवोटी के साथ, नॉट नॉट एनी अदर पर्सन, देन ऑल्सो it not only increases your bhakti, but it also decreases your what do you call,
एंजाइटीज, योर सफरिंग्स। और इसमें मैं ओपन करता हूँ एक, बड़ा अच्छा है उसमें, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, आपने तो पढ़ा होगा है ना, मेरे तो वो नहीं, छह लक्षण, छह लक्षण डिवोटी एसोसिएशन के, छह लक्षण बताता हूँ आपको, बन गया। डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, नहीं पढ़ा, अभी 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 आया नहीं मॉड्यूल अभी। सेक्शन में पढ़ा नहीं है, ओके सॉरी। हम्म, सिक्स थिंग्स, सिक्स प्रिंसिपल्स आर फेवरेबल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। कौन कौन से हैं वो? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्याग सतो वृते षड्भिर भक्तिर प्रसीदति। भक्ति इन छह चीजों से ऊपर उठती है। कौन सी? उत्साह, एंथुजियाज्म, निश्चय, डिटर्मिनेशन, धैर्य, पेशेंस, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात सतो वृते, बीइंग enthusiastic, endeavoring with confidence, being patient, acting according to the principles, religious principles, and hearing, chanting, remembering Krishna, abandoning the association of non-devotees. ठीक है, that is the important point which I'm trying to highlight. One is, this is, these are the six principles undoubtedly assure the complete success in pure devotional service. Now ये छह दिए हैं, और छह उन्होंने कौन से दिए हैं जिनसे आप डाउनफॉल होती है, वो कौन से हैं? अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये छह चीजों से भक्ति विनाश हो जाती है। कौन सी? अत्याहारा, ओवर एंडेवर, ग्रीड। प्रजल्पा, प्रजल्पा तो हम सबको पता है, गॉसिप करने से, निंदा करने से, टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट द मंडेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रैक्टिसिंग स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, नॉट फॉर द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। And the main one which I'm coming to, associating with worldly minded persons, जन संगस्य। वर्ल्डली माइंडेड लोग, ये दोनों दोनों तरफ आ रहा है ये वाला एसोसिएशन वाला पॉइंट। ये भक्ति को नीचे लेके जाने के लिए भी आ रहा है, और अगेन भक्ति को ऊपर उठाने के लिए भी आ रहा है। सो दैट इज वाई द डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी माता जी, कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये जो इन्होंने लिखा है ना रूप गोस्वामी ने, हम्म। कि फॉलोइंग द प्रिंसिपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जो अभी आपने बताया लास्ट वाले में थी, विनाश करने वाली, Practicing the spiritual, प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चुरल रूल्स, हाँ, एंड रेगुलेशन ओनली फॉर द, तो इससे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्यों नहीं हो सकता? मतलब ठीक है, भक्ति का आई थिंक वो उसमें एस्पेक्ट नहीं है, बट अगर स्क्रिप्चर रूल्स और रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं तो वो तो वही कहते हैं ना कि भगवान का, उसमें भगवान का नाम भी होगा ही ना स्क्रिप्चर्स में, या नहीं होता है? necessarily. This they are referring to is the ritualistic thing. रिचुअलिस्टिक थिंग्स एज इन, जहाँ पे, अच्छा, जहाँ पे जो और पुराण है जिसमें आई थिंक भक्ति का कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए ही हाँ, कह रहे हैं। उसमें प्रभुपाद ने यहाँ पर मेंशन भी किया होगा नीचे। द मेन बट प्रो अदरवाइज भी ये तो मोड ऑफ गुडनेस में तो लेके जाता है, इससे भक्ति का विनाश क्यों होता है? हाँ, इसमें और डिटेल में दिया होगा ओके, बट आई थिंक ऑल, हाँ, ये जो हम करते नहीं है, वेरियस रिलीजियस कॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस नो बेटर देन एनिमल सोसाइटी। आ गया, देखो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया हुआ। द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन civilization consists of occupational engagements performed according to the scriptural injunctions. The higher intelligence of human beings should be trained to understand the basic dharma. In human society, there are various religious conceptions characterized as Hindu, Christian, Mohammedan, Buddhist, and so on. For without religion, human society is no better than animal society. I think ये भी मीन्स ये मेंटल कॉन्कॉक्शन वाले जो आप अपने मन से, हम लोग जो रिलीजियस प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, मेरे ख्याल से फिर ये उसका है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ऐसे तो कुछ है ही नहीं ना, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं नो बेटर देन एनिमल सोसाइटी। हम लोग हिंदू या क्रिश्चियन या मोमडन तो हम लोग बॉडी के बेस पे ये सब रिलीजन बनाएंगे, हमारा रियल धर्म तो वही है ना, कि हम कृष्ण के दास है। हाँ, एक मिनट, इसमें डेफिनेटली मुझे इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मतलब नहीं समझ में आ रही प्रभु इसका, कि क्या प्रभुपाद कहना चाह रहे थे, या तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको हाँ, मैं इस दोबारा पर।
और डिटेल में बताऊंगा। हाँ, एक्सेप्टिंग सम ऑफ द स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इमीडिएट बेनिफिट, मैंने वही बोला ना, कर्म कांड। सो दीज आर द रिचुअल्स फॉर इमीडिएट बेनिफिट। मैं बताता हूँ। जैसे किसी का शनि खराब है, ठीक है, तो वो पता है क्या बोलते थे, मैं जब इंडिया में था तो वो बोलते थे कि किसी गरीब को ना शनिवार को दारू पिला दो, ये आपका उपाय है। कैन यू इमेजिन, गरीब बंदे को ओके ओके। पिला दो, इससे आपका शनि ठीक हो जाएगा और आपका ग्रह जो है वो उस पे चला जाएगा। बोलते हैं शनि को काला कुत्ता रख लो घर में, काले कुत्ता, और वो काला कुत्ता क्या करेगा, आपका वो ग्रह ले लेगा सारा। तो और प्रभु एक क्वेश्चन ये है कि ये स्क्रिप्चर रूल्स फिर क्यों लिखा है? ये स्क्रिप्चर्स में ये रूल्स बताए, ये कर्म कांड के लिए बताए गए ये रेमेडीज? कभी बोला कि वेदास, वेदास में सारे तरह के लोगों की इंफॉर्मेशन है। वो किसी को उसका भी प्रोविजन है। ओके, चलो आओ, मीट खाना है उसको, चलो जाओ खुद से काटो, खुद से करो और उसके मुंह बोलो। मीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में? मांसा। मांसा का क्या मतलब? मेरा मेरा खुद का मांस। नहीं नहीं, मांसा मीन्स के, मांसा का लिटरल लिटरल मीनिंग है कि अगर मैं तुम्हें मार रहा हूँ तुम मुझे नेक्स्ट जन्म में मारना। मुझे मारोगे, हाँ। तो हर तरह का प्रोविजन है वेदास में। तो प्रभु फिर ये पॉइंट तो ये भी हुआ ना कि वेदास में ऐसे भी टॉपिक है ना जो भक्ति से हमें दूर ले जा रहे हैं, फिर तो ये बात हुई क्योंकि भक्ति से नष्ट हो रही है ना। अभी तो तो फिर ये स्क्रिप्चर्स में या वेदास में ये वेद व्यास जी ने दिए ना सारे स्क्रिप्चर्स में। तभी तो भगवत गीता में बोलते हैं, देर आर फूल्स, आर द फूल्स हैं जो फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास को पढ़ते हैं। कृष्णा ने बोला है। तो फिर ये किन के लिए बनाए गए हैं, किन लोगों के लिए जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में, उनको मोड ऑफ पैशन में लाने के लिए? उनको ये हर एक वेदास जो है वो, अब हम तो इस लेवल पे आ गए हैं, पता नहीं हम कितने जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कृष्णा बोल, बहुनाम जन्म, कितने जन्मों के बाद हम इस स्टेज पे आए हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। हम कितने स्टेज पे आए हैं कि जब हमें पता चला है कि कृष्णा इज द टॉप मोस्ट, स महात्मा सु दुर्लभ। इस स्टेज पर आने के लिए स्लोली स्लोली स्लोली, दीज आर द वो ना। तो प्रभु बेसिकली ये फिर किसके लिए मतलब किसको हेल्प करते हैं, किसको फैसिलिटेट करते हैं ये जो स्क्रिप्चर्स हैं? हाँ। ऑफ इग्नोरेंस में हैं जो कर्म कांड करते हैं, वो कर्म तो कांड, उनको एटलीस्ट वो अथॉरिटी तो मान रहे हैं कि यार चलो कुछ देखो कुछ तो वो मान। अगर अगर लेकिन मेरा फिर से यही क्वेश्चन है, अगर इससे भक्ति का नाश हो रहा है तो फिर ये एलिवेट कैसे करते हैं? अगर वो मोड ऑफ इग्नोरेंस से, फिर वो मोड ऑफ गुडनेस में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि या मोड ऑफ गुडनेस में आ जाएंगे इससे फॉलो करने से? डिपेंड करता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये पढ़ना पड़ेगा दोबारा, एक्सेप्टिंग सब कोई नियम। नहीं प्रभु, इसके बारे में हाँ, अगर क्योंकि आपने विल अभी इसकी प्रिपरेशन नहीं की होगी, फिर सो क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक्स है, बहुत डिटेलिंग चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्लास में वो बट अभी के लिए मुझे हाँ इतना समझ में आ गया कि ये मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले लोगों को आई थिंक मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ गुडनेस के लेवल पे लेकर आते हैं। इसीलिए ये वेदास में है। अदरवाइज हाँ कोई मीनिंग नहीं है फिर। तो देन इट इज भक्ति का नाश करेंगे, अपनी भक्ति तो है ही नहीं ना फिर, अगर हाँ हम भक्ति, हाँ भक्ति, भक्ति को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, हाँ राइट। भक्ति दे, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग भक्तिर विनश्यति। अगर हम यही इन्हीं सब चीजों में पढ़ देंगे कि कर्म कांड में ये दो, मुझे ये दो, ये लो और ये दो, तो हम उसी चक्कर में फंसे रहेंगे, उनमें से हम निकल नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज, कहीं नहीं है उस चीज में, तो भक्ति का तो नाश ही है ना एक तरह से। हाँ राइट, थैंक यू प्रभु। तो आई थिंक या विल स्टॉप हियर 7:55। एनी मोर क्वेश्चंस या कमेंट्स? सो हमने आज डिस्कस किया है कि हमारा क्या क्या 5 चीजें हैं जिनसे हम अपनी सफरिंग को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो 5 चीजें क्या हैं?
डिवोटी एसोसिएशन, प्रीचिंग, चैंटिंग, कृष्णास के लॉज को के अकॉर्डिंगली चलना, एंड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को हमने काफी ज्यादा डिटेल में देखा है, कि जिसमें हमने देखा है कि वी हैव टू डेवलप इमोशनल मेमोरीज एज कंपेयर टू इंटेलेक्चुअल मेमोरीज। और वो कैसे आएंगी? बाय लुकिंग एट कृष्णा, बाय ऑब्जर्विंग द हैंड ऑफ कृष्णा इन अवर एवरीडेज लाइफ। और हमें प्रिपेयर करना है डेथ के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, बाय प्रैक्टिसिंग। लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। ऑलराइट, all clear? Do you want to share anything? We will stop here. Alright, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna. Thank you, bro, for the class. Hare Krishna. Indeed, a beautiful class. Thank you, Prabhuji.